السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دنیا۔ ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کے لیے کمانڈو سیریز کا قسط نمبر 12 پیش خدمت ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں جاگا تو قمردین وہاں پر نہیں تھا۔ باہر شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ قمردین ایک اور جھونپڑی سے نکل کر میری طرف آیا۔ اس نے تیلا مجھے دے کر کہا، اس میں ترکاری ہے، یہ تم ہلی کے اسٹیشن ماسٹر کے سپرد کرو گے۔ یہ تیلا اور ترکاری ہماری نشانی ہے۔ دہلی کا اسٹیشن ماسٹر ہمارا اپنا آدمی ہے۔ ہلی مشرقی پاکستان کی سرحد پر ہے۔ ہلی کا اسٹیشن مشرق پاکستان میں اور اسٹیشن ماسٹر نزرل کا کوارٹر بھارت یعنی مغربی بنگال کی سرحد میں ہے۔ مشرقی پاکستان کی سرحد کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ بنگالی تمہیں کسی نہ کسی طرح اپنی حفاظت میں اسٹیشن ماسٹر کے کوارٹر تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد اسٹیشن ماسٹر تمہیں بارڈر کراس کرے گا۔ اب میں جاتا ہوں۔ میرا ساتھی قمردین واپس کلکتے کی طرف چلا گیا۔ میرے بنگالی رہنما نے رات کو مجھے چاول اور مچھلی کا پتلا شوربہ دیا۔ اس کے بعد اس نے اشاروں سے مجھے سو جانے کے لیے کہا۔ میں جھونپڑی میں بچی چارپائی پر لیٹ گیا۔ یہاں بہت موٹے موٹے مچھر تھے۔ ان مچھروں نے کاٹ کاٹ کر برا حال کر دیا۔ آدھی رات کے بعد بنگالی رہنما آ گیا۔ اس نے ایک میلی کچلی صدری بھی پہن رکھی تھی۔ اشارے سے اس نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم جھونپڑی سے نکل کر اندھیرے جنگل میں ایک طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال یہ تھی کہ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ بھاری اکثریت سے جیت چکی تھی۔ مجیب اپنے ساتھ 6 نکاتی فارمولہ لایا تھا۔ اس دوران بنگالی مسلمانوں کے دلوں میں مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کے جذبات بھر دیے گئے تھے، اور وہاں انتخابات اسی نفرت کی بنا پر ہوئے۔ اب فاتح عوامی لیگ اقتدار کے ساتھ ساتھ مغربی پاکستان سے مکمل آزادی کا بھی مطالبہ کر رہی تھی۔ عوامی لیگ کی کامیابی کے ساتھ ہی بھارتی فوجیں مغربی بنگال کی سرحد پر پہنچ گئی تھی، اور پوری 5 ڈویژن فوج نے مشرق پاکستان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ یہ نقل و حرکت بڑی خاموشی سے ہو رہی تھی، اور بھارت کے عزائم صاف ظاہر تھے کہ وہ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کی مدد سے بنگلہ دیش کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ یہ رہنما مجھے بے حد دشوار گزار رستوں سے لے جا رہا تھا۔ وہ بھارتی بارڈر فورس کی چوکی سے بچ کر گزر رہا تھا۔ ہم نے کئی ندیاں اور نالے عبور کیے۔ کوئی 2 بجے رات مجھے دور ایک ٹیلے کی آغوش میں کچھ دھندلی روشنیاں دکھائی دی۔ چونکہ مجھے گونگا اور بہرا بنا دیا گیا تھا، اس لیے میرا بنگالی ساتھی مجھ سے اشاروں ہی میں بات کرتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ مغربی بنگال کا سرحدی گاؤں بن گاؤں تھا۔ یہاں سے ہلی کا سرحدی اسٹیشن چند میل کے فاصلے پر تھا، جہاں بھارتی فوجوں کے ساتھ پاکستانی فوج کے جوانوں نے تاریخی جنگ لڑی اور شجاعت اور سرفروشی کی تاریخ میں سنہرا باب رقم کیا کہ خود بھارتی فوج کے جرنیلوں کو پاکستان فوج کی بہادری اور جذبہ شہادت کا اعتراف کرنا پڑا۔ ہم بن گاؤں سے کافی دور رہ کر ایک گھاٹی میں سے گزر رہے تھے۔ یہاں چاروں طرف جنگلی جھاڑیاں اور بانس کے جھنڈ تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ میری گھڑی کی چمکدار سوئیاں 4 بجا رہی تھی کہ ایک ٹیلے کی ڈھلان پر دور ریلوے کا سگنل دکھائی دیا۔ اس کی بتی سرخ تھی۔ بنگالی رہنما مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے ایک درے میں داخل ہو گیا۔ یہ درہ ایک تنگ و تاریک گھاٹی سے گزر کر ایک خشک نالے میں اتر گیا۔ نالے سے باہر نکلے تو کچھ فاصلے پر ایک ڈھلوان چھت والے کوارٹر کا خاکہ اندھیرے میں ابھرتا دکھائی دیا۔ بنگالی رہنما نے مجھے اشارہ کر کے وہ ٹھہرنے کو کہا۔ خود اونچی نیچی جنگلی گھاس میں چلتا ہوا کوارٹر میں داخل ہو گیا۔ میں سانس روکے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ کر مجھے اپنی ساتھ لے اندر گیا، جہاں میری ملاقات ہلی کے مسلمان مگر بھارتی بنگلہ اسٹیشن ماسٹر نزرل سے ہوئی۔ میں نے اسے تیلا دیا تو اس نے ترکاری نکال کر غور سے اسے دیکھا، اور پھر مجھے کوارٹر کی پچھلی کوٹری میں جا کر آرام کرنے کا اشارہ کیا۔ کوٹری میں لکڑی کا ایک تختہ بچھا ہوا تھا۔ میں اس پر لیٹ گیا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے، لیکن اب تک سارا کام بڑے تسلی بخش انداز میں ہو رہا تھا، اس لیے میں قدری مطمئن بھی تھا۔ میرے بنگالی رہنما نے مجھ سے 100 روپے کا پاکستانی نوٹ لیا اور واپس چلا گیا۔ شاید یہ نوٹ اس نے ہلی کے اسٹیشن ماسٹر کو دینا تھا۔ منہ اندھیرے اسٹیشن ماسٹر نزرل نے مجھے چائے پلائی، ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا کھانے کو دیا اور اشاروں میں بتانے لگا کہ مجھے اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔
वो मुझे क्वार्टर के पिछले दरवाजे से निकाल कर केतों और नारियल के झंडों से गुजारता हुआ एक रेलवे लाइन पर ले आया जहाँ एक मालगाड़ी खड़ी थी। इसने एक डब्बे की तरफ इशारा किया तो मैं मालगाड़ी के डब्बे में घुस गया। अंदर लकड़ी के बड़े बड़े डब्बे पड़े थे। स्टेशन मास्टर ने इशारों में बताया कि गाड़ी मुझे ढाका पहुंचा देगी और मैं इस दौरान बाहर निकलने की कोशिश न करूं। स्टेशन मास्टर ने मुझे पानी से भरी हुई छोटी सी सराय और एक खाली नारियल दिया जो उबले हुए चावल से लबरेज था। वो डब्बे का दरवाजा बंद करके चला गया। मैं लकड़ी के डब्बों के पीछे चुप कर बैठ गया। बंद डब्बे के दरवाजों से सुबह की रोशनी अंदर आने लगी। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान का मौसम खुशगवार था। 2 घंटे बाद दवा को सकना शुरू और इसे मालगाड़ी के साथ जोड़ दिया गया। मालगाड़ी दिल्ली के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सारा दिन गाड़ी चलती रही। इसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। इसने कई फुल अबूर किए। मैंने नारियल में भरे हुए उबले चावल निकाल कर खाए और सराय से पानी पी लिया। दिन के 2 बजे गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन पर देर तक रुकी रही। यहाँ से चली तो इसकी रफ्तार खासी तेज हो गई। दिन गुजर गया, रात आ गई। मैं डब्बों के दरमियान टांगे पसार कर थोड़ी वर्जिश कर लेता ताकि बैठे बैठे टांगे न अकड़ जाए। रात को फिर मैंने बाकी मांदा चावल खाए और एक कोके से टेक लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। सारी रात गाड़ी चलती रही। पीछ में मेरी आंख खुल जाती और मैं घड़ी पर वक्त देख लेता। रात के 3 बज रहे थे कि गाड़ी की पहियों में ऐसी गड़गड़ाहट शुरू हो गई जिससे अंदाजा हुआ कि गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन के बहुत बड़े यार्ड से गुजर रही है। शायद ढाका का बड़ा रेलवे स्टेशन आ गया था। मैंने एक दरज में से बाहर देखा। मुझे रोशनियां पीछे की तरफ भागती दिखाई दी। ये मकानों, कोठियों और कारखानों की रोशनियां थी। गाड़ी की रफ्तार काफी कम हो गई थी। रेलवे यार्ड से गुजरते हुए मालगाड़ी ने निस्फ घंटा लगा लिया। आखिर एक हल्के से दक्षे के साथ रुक गई। मैंने सुराख में से एक बार फिर बाहर देखा। प्लेटफॉर्म कुछ फासले पर सामने की तरफ था। बीच में 2 रेलवे लाइन थी। अब सबसे बड़ा मसला डब्बे से बाहर निकलने का था। डब्बा बाहर से बंद था। जब तक उसे कोई बाहर से न खुलता मैं नीचे नहीं उतर सकता। आदमी की आवाज़ें आने लगी। शायद रेलवे के मुलाजिमीन थे और बंगला बोल रहे थे। बाहर अभी अंधेरा था। कोई शख्स डब्बे के पहियों पर हथौड़े के ज़रबे लगाते गुजर गया। मैंने सुराख के साथ आंखें चपका दी। मुझे कोई आदमी दिखाई न दिया। गाड़ी रुकने से डब्बे में जिस हो गया था। मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जिसे कुछ लोग पीछे से मालगाड़ी के दरवाजे खोलते चले आ रहे हो। मैं डब्बों के पीछे छुप गया। मेरे डब्बे का दरवाज़ा भी खोल दिया गया। ये रेलवे के आदमी थे। वो तेज लहजे में बातें करते आगे बढ़ गए। ये सिर्फ मालगाड़ी के डब्बों के दरवाजे ही खोल रहे थे जो मेरे लिए आज़ादी का पैगाम था। जब आवाज़ें दूर चली गई तो मैंने सर बाहर निकाल कर देखा। रेलवे मुलाजिमीन की एक टोली हाथ में लाठीन पकड़े मुझे से काफ़ी फासले पर एक डब्बे का दरवाज़ा खोल रही थी। मैंने मौके गनीमत जानकर डब्बे से बाहर छलांग लगा दी और रेलवे लाइन पर गिर पड़ा। जल्दी से खुद को संभाला और दौड़कर प्लेटफार्म पर चढ़ गया। प्लेटफार्म सुनसान था। मैं एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर ये मालूम करना चाहता था कि कौन सा स्टेशन है। मैं बंगाली कुर्ते पाजामे में मलबूस था। छोटा सा फुल अबूर करके मैं दूसरे प्लेटफार्म पर आ गया। कुछ बंगला मुसाफिर मर्द औरतें अपने अपने सामान की गट्टियों के पास सो रहे थे। किताबों और चाय के स्टॉल भी थे। एक जगह मुझे अंग्रेजी में कमलाफूर लिखा हुआ नजर आ गया तो मेरे दिल में इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। ढाका रेलवे स्टेशन का नाम कमलाफूर ही था। मैं ढाके पहुंच गया। मैं सेकंड क्लास की इंतज़ारगाह में दाखिल हो गया। अभी मुसाफिर अपने सामान के पास सो रहे थे। मैंने बाथरूम में जाकर मुँह हाथ धोया। आईने में अपनी सूरत देखी। मैं पहले से कुछ कमज़ोर हो गया था और मेरा रंग भी सानोला हो रहा था। या मैंने एक बंगाली हुजाम से शेव बनाई। इसे सूखा नोट दिया तो वो बोला कि मेरे पास चट्टा नहीं है। टी स्टॉल वाले से 1 रुपया लेकर हुजाम को दिया। डटकर नाश्ता किया। मैं बंगले की बजाय उर्दू में बात कर रहा था। मैंने महसूस किया कि टी स्टॉल वाला बंगाली मुझे मुश्तबा मल्क नापसंदीदा निगाहों से देख रहा था। ये मुजीबुर रहमान और भारतीय हुकूमत की कारिंदों की जानिब से मगरबी पाकिस्तान वालों के खिलाफ चलाई हुई मुहिम का असर था। लेकिन अभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए थे। प्लेटफार्म पर मैंने मगरबी पाकिस्तान के कुछ सपाओं की भी पहरा देते हुए देखा। मैं भारत की सरहद पार करके मशरक़ पाकिस्तान में दाखिल होने पर बेहद खुश था। मुझे आज़ादी और कुशादगी का एक नया एहसास हो रहा था। मैं मौत के मुँह से निकलकर वतन पाक की सरजमीन पर पहुँच गया था। मेरे पास 100 रुपये के करीब पाकिस्तानी करेंसी थी। ढाका मेरे लिए अपना मगर अजनबी शहर था। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। मेरा इरादा था किसी जगह थोड़ा बहुत काम करके हवाई जहाज़ का किराया जमा करो और ढाका से लाहौर चला जाओ। लेकिन हालात क्या रुख इख्तियार करने वाले थे और किस्मत मेरे लिए किस किस्म की सनसनीखेज़ वाक़यात का माता बन रही थी इसकी कोई खबर मुझे न थी।
मैंने सिगरेट का एक पैकेट खरीदा और सिगरेट सुलगाकर एक खाली बंच पर गौर करने लगा कि मुझे किस जगह काम मिल सकता है। मैं आदि सिगरेट नोश नहीं था, बस कभी कभी शौकिया सिगरेट नोशी कर लिया करता था। दिन का उजाला पहला तो मैंने सोचा कि शेर का रुख करना चाहिए। मशरक़ पाकिस्तान के शहरों के नाम से वाकिफ तो न था, मगर यहाँ पहली बार आया था। मेरे पास किसी शेर का टिकट नहीं था। इससे पहले के टिकट चिकर प्लेटफॉर्म के गेट पर आकर अपनी ड्यूटी संभालता। मैं रेलवे स्टेशन शानदार ड्यूटी में पहुंच गया। सुबह हो चुकी थी, मुसाफिरों के रेल पेल शुरू हो गई थी। साइकिल, रिक्शा और मोटर गाड़ियां मुसाफिरों को ला रही थी। साड़ीफूश, बंगला और बाहरी खवातीन अपनी एहलखाना और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मैंने एक फौजी सिपाही को देखा जो शक्ल सूरत से ही पंजाबी लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर सलाम किया। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे पंजाबी में बताया कि मैं सिलमट की एक टी कंपनी में काम करता था। वहाँ से जॉब मिल गया है, अब काम की तलाश में ढाका आया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ कोई सस्ता सा होटल बता सकते हैं जहाँ मैं कुछ दिन रह सकूँ? सिपाही 12वें पंजाब रेजिमेंट का था। बड़ी खुश अखलाक़ी से बोला, यहाँ कई सस्ते होटल है, लेकिन आजकल यहाँ के लोग मगरबी पाकिस्तान वालों और ख़ास तौर पंजाबियों के खिलाफ है। तुम ऐसा करो कि रिक्शे में बैठकर महमदपुर चले जाओ, वो पंजाबियों का गढ़ है। वहाँ तुम्हें सस्ता होटल भी मिल जाएगा और मुमकिन है कई काम भी मिल जाएगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और रिक्शे में बैठकर उसे महमदपुर चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला बंगाली था। रिक्शा ढाका शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरता हुआ एक कुशादा सड़क पर पहुंचा जिसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। बीच में सोनेरे एक रोशन थी। नारियल और पाम के दरख्त सुबह खुशगवार हवा में आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे। ढाका काफ़ी खूबसूरत और बड़ा शहर था। रिक्शा बाई तरफ घूमने गवर्नमेंट हाउस के करीब से गुजरा। इस इमारत पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। रिक्शा एक बहुत बड़े गेट में दाखिल हो गए। इस गेट की पेशानी पर उर्दू और बांग्ला में अयूब गेट लिखा हुआ था। इससे पहले मुझे बाजारों में कहीं कहीं उर्दू के बोर्ड भी नजर आ रहे थे। या दाखिल होने के बाद उर्दू के बोर्ड काफ़ी तादाद में नज़र आए। रिक्शे वाले ने बताया कि हम महमदपुर में दाखिल हो चुके हैं। महमदपुर ही वो दान मंडी भी थी जहाँ अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान का बंगला था, मगर इस इलाके में मगरबी पाकिस्तान के पंजाबियों की अक्सरियत थी। एक जगह मैंने खान होटल का बोर्ड देखा तो रिक्शे वाले को इधर चलने का इशारा किया। मैंने उस होटल में कमरा किराए पर ले लिया। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि कमरे का दरवाज़ा बंद करके पलंग पर गिर पड़ा और ऐसी गहरी नींद सोया कि दोपहर के 2-2:30 बजे जाकर कहीं आंख खुली। मैं हाथ मुंह धोकर नीचे आ गया। एक मेज़ पर ब्रेड की बंडी, तूरी और रोटी खाई। चाय का कप मंगवाया और चाय पीते हुए सोचने लगे कि मुझे किससे मिलना चाहिए ताकि मुझे कोई लिखने पढ़ने का काम मिल जाए और मैं लाहौर जाने का एयर टिकट हासिल कर सकूं। खान होटल का मालिक मलकुल्ला यार खान पूर मगरबी पाकिस्तान का एक आधी उम्र का आदमी था। मैंने उससे बात की तो उसने ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा जायज़ा लिया और रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए बोला, भाई जी यहाँ तो पहले ही बड़ी बेकारी है और पंजाबी को तो यहाँ कोई नौकरी नहीं देता। जब मैंने उसे अपनी मजबूरी बताया और कहा कि मैं मगरबी पाकिस्तान जाने के लिए किराए की जमा करना चाहता हूँ तो कहने लगा, भाई जी तुम ऐसा करो कि यहाँ एक कश्मीरी नादर भट्ट साहिब कालीनों का कारोबार करते हैं, उनसे जाकर मिलो, शायद वहाँ तुम्हें काम मिल जाए। मैं नादर भट्ट का एड्रेस लेकर महमदपुर के इलाके में फिदल ही इनकी दुकान की तरफ चल पड़ा। नादर भट्ट का दुकान 2 मंजिल कोठी नमा इमारत में थी। दुकान निचली मंजिल पर थी और ऊपर इनकी बीवी और बच्चे रहते थे। दुकान के बाहर भट्ट का कारपेट हाउस का अंग्रेजी में लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ था। दुकान खूबसूरत थी और कालीनों से भरी हुई थी। नादर भट्ट की उम्र 50 के लगभग थी, मगर गोरा चट्ट और मजबूत जिस्म का आदमी था। वो दुकान के अंदर काउंटर पर बैठा हिसाब किताब में मसरूफ था कि मैं सलाम करके इनके पास बैठ गया। इनका मुलाजिम एक गैर मल्की गाहक को कालीन खोल खोल कर दिखा रहा था। मैंने अपनी कहानी बयां की कि सलमट में चाय की एक दफ्तर में मुलाजिम था, लाहौर का रहने वाला हो, अब बेकार हो और काम चाहता हो ताकि कुछ रकम जोड़ कर वापस लाहौर जा सकूं। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। तब तक अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।